বিৰুদ্ধে সংবাদমেলযোগে পুনৰ সৰব হৈছে মেহমুদ মাদানী। ক্ষমতা ধৰি ৰাখিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধৰ্মৰ নামত মানুহক বিভাজন কৰিছে। ক্ষমতাৰ বাবে বিশেষ সম্প্ৰদায়, মিয়া, অচিনাকি, সন্দেহযুক্ত আদি শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপি চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযানে মোক দুখ দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মাদানীয়ে। উচ্ছেদক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি নিয়ম বান্ধি দিছিল, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিছে বিজেপি চৰকাৰখনে। এনেদৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰাটো নিন্দনীয় বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে মেহমুদ মাদানী। ক্ষমতা ধৰি ৰাখিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধৰ্মৰ নামত মানুহক বিভাজন কৰিছে। ক্ষমতাৰ বাবে বিশেষ সম্প্ৰদায়, মিয়া, অচিনাকি, সন্দেহজনক আদি শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপি চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযানে মোক দুখ দিছে, কষ্ট দিছে বুলি মেহমুদ মাদানীয়ে মন্তব্য কৰিছে। উচ্ছেদক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বান্ধি দিয়া নিয়ম অমান্য কৰিছে বিজেপি চৰকাৰখনে। উচ্ছেদৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰাটো নিন্দনীয়। যদি বিদেশী আছে তেনেহলে আইন অনুসৰি তেওঁলোকক বিতৰণ কৰক। প্ৰকৃত বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। অসমত যদি নামঘৰ সংকটত আছে তেনেহলে মছজিদ সংকটত আছে বুলি এইবাৰ মাদানীয়ে মন্তব্য কৰিছে। নামঘৰ মছজিদক আপুনি পৃথক কৰিব নোৱাৰে। নামঘৰ যদি সংকটত আছে তেনেহলে অসমত মছজিদ সংকটত আছে। আৰু সংবাদমেলযোগে সৰব হৈছে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ মেহমুদ মাদানী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মাদানী সৰব হৈছে। ক্ষমতা ধৰি ৰাখিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধৰ্মৰ নামত মানুহক বিভাজন কৰিছে। একমাত্ৰ ক্ষমতাত থাকিবলৈ বিশেষ সম্প্ৰদায়, মিয়া, অচিনাকি, সন্দেহজনক আদি শব্দ এই চৰকাৰখনে প্ৰয়োগ কৰিছে। আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি যি ধৰণে উচ্ছেদ চলাইছে, এই উচ্ছেদ অভিযানে মোক দুখ দিছে, মোক কষ্ট দিছে বুলি এইবাৰ সংবাদমেল সংবোধন কৰি মেহমুদ মাদানীয়ে মন্তব্য কৰিছে। উচ্ছেদক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছিল, বিজেপি চৰকাৰখনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বান্ধি দিয়া নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰা কথাটো নিন্দনীয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। যদি অসমত বা ভাৰতত প্ৰকৃত বিদেশী আছে তেনেহলে বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰক। বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই। আৰু সংবাদমেলযোগে বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছে, বিজেপি চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰিছে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ মুৰব্বী মেহমুদ মাদানীয়ে। মাদানীৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছো। यहाँ स्टेट में इविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर
डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर नाम घर को तकलीफ है तो मस्जिद कैसे ठीक से होगी? नहीं हो सकती। यहां स्टेट में एविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहां के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर नाम घर को तकलीफ है